Assalamu alaikum, dear students. Here your lab instructor, Engineer Rabia Siddiq. Today our experiment is experiment 3. To determine the muscle force required by the biceps for a range of elbow joint angles using the mechanical arm model. Basically आज की लैब में आप लोगों ने फोर्स को डिटर्मिन करना है बाइसेप्स। आप लोग के ह्यूमन आर्म मॉडल है, उसमें आप लोग को शोल्डर और एल्बो का एक एंगल लगा होगा जिसका नेम है एक सेंसर लगा होगा जिसका नेम है गोनियोमीटर सेंसर। उसको हम लोग यूज़ करते हैं जॉइंट की मेजरमेंट्स के लिए, एंगल की मेजरमेंट्स के लिए। द लैब आउटलाइन इज लैब ऑब्जेक्टिव, इक्विपमेंट नीडेड, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन एंड देन द रिजल्ट्स। द लैब ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमिन द मसल फोर्स. The equipment which we need in the lab is the mechanical human arm model, and the software which we use in the lab is the Pasco Capstone. What is the muscle force? Muscle force generation refer to the process in which skeletal muscle, in response to the neural stimuli, converts the metabolic energy into active force that pulls on the bones through intermediate connective tissue. मसल फोर्स जनरेशन बेसिकली जिस प्रोसेस से रेफ़र कर रही होती है उसमें क्या होता है, इन रिस्पॉन्स टू न्यूरल स्टिमुलाई। न्यूरल स्टिमुलाई बेसिकली हार्मोन है जो रिलीज होते हैं आपके ग्लैंड्स से ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? ये आप लोग का केमिकल मैसेंजर सिस्टम होता है जो कंप्राइज करता है फीडबैक लूप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द इंटरनल ग्लैंड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम. Metabolic energy is the process of generating the energy from the nutrition. Biceps basically क्या होता है? Biceps is a muscle on the front part of the upper arm. Upper arm is basically region between the shoulder and the elbow. The biceps is attached to the arm's bones by tough connective tissues called the tendons. Here the force and torque relationship in muscle and joints. Muscle, bones and joints are some of the most interesting application of statics. There are the some surprises. Here the human arm model, here is the tricep muscle, bicep muscle and the weight. Here is the free body diagram. In this arm the bicep muscle is a flexor that is close to the limb. हम उसको मूव कर सकते हैं, but the tricep muscle is an extensor that open the limbs. This configure is typical of skeletal muscle, bones and joints in human and the other vertebrates. Most skeletal muscle exert the much larger forces within the body than the limbs applied to the outside world. Here the reason is clear once we realize that the most muscles are attached to bones while the tendons close to the joints, causing these systems to have mechanical advantages much less than one. Viewing them as simple mechanics, the input force is much greater than the output force as shown in the figure which you in the next slide. Here in this figure you see that different forces are acted. ये basically equivalent mechanical system है उसी आप लोग का human arm motor का. यहाँ पे basically FB है, magnitude of the force है जो biceps पर है. FE basically elbow joint की force है. weight of forearm को represent किया गया है यहाँ पर WA से, and WB is basically the load. जो आप लोगों ने बुक पकड़ी है कोई भी लोड हो सकती है. इसमें unknown forces basically बाइसेप्स की फोर्स है और आप लोगों की एल्बो की फोर्स है जो आप लोगों ने मेजर करना. हेयर टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ बाइसेप मसल मस्ट एक्सर्ट टू होल्ड द फोर आर्म एंड इट्स लोड. जो फोर फोर्सेस मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया उसकी एक्सप्लेनेशन है लाइक दैट. मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द बाइसेप्स इज FB, elbow joint is FE, weight of the forearm is WE and load is WB. Two of these are the unknown forces, elbow and the basically आप लोग की शोल्डर की फोर्स जो आप लोग की अननोन है. सो डैट द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कैन नॉट बाय इटसेल्फ यील्ड FB, बट इफ वी यूज द सेकंड कंडीशन एंड चूज द पॉइंट टू बी एट द एल्बो then the torque due to FE is 0 and the only unknown force become the FB. The torque created by the weights are clockwise while the torque created by the biceps is anti-clockwise. दो किस्म की अब टॉर्क क्रिएट हो रहे हैं. एक क्लॉकवाइज जो आप लोग को वेट की वजह से क्रिएट हो रहा है वो आप लोग का बेसिकली क्लॉकवाइज है. जो आपका बाइसेप्स की वजह से क्रिएट हो रहा है वो आप लोग का एंटी क्लॉकवाइज है. अब यहाँ पे जो हम इक्वेशन क्रिएट कर रहे हैं प्रीवियस फिगर से R2 WA प्लस R3 WB इज इक्वल टू R1 FB.
वेट का बेसिकली मैंने आपको बताया जो आपका फोर आर्म का है, बी आपका लोड है बाइसेप्स का, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है 90 का फॉर ऑल दी फोर्सेस। दिस इक्वेशन कैन इजीली बी सोल्व फॉर द एफ बी इन टर्म्स ऑफ नाउन क्वांटिटीज। हेयर आप लोगों ने सिंपल वैल्यूज़ को पुट करना है। तो आप लोग की जो बेसिकली आप लोग की फोर्स आ रही है एफ बी पे बाइसेप्स पे, वो आप लोग की फोर्स 70 न्यूटन। सेकंड, जब हम लोग वेट और उसको कंबाइन करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो आपकी जो रेशियो एक्सर्ट हो रही है वो हम उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, आप लोग की बाइसेप्स की फोर्स ओवर WA प्लस WB इज़ द वेट ऑफ द फोर आर्म एंड WB इज़ द लोड। तो आप लोग की रेशियो निकलेगी 7.3। हेयर द एंगल बिटवीन द फोर आर्म एंड द अपर आर्म इज़ 90। इफ़ दिस एंगल चेंज, जैसे हम एंगल चेंज करेंगे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बाइसेप्स इज आल्सो चेंज। जाहिर सी बात है जब हम एंगल चेंज करेंगे फोर्स भी चेंज करेंगे। फोर्स जब चेंज होगी तो लेंथ होगी जो बाइसेप्स मसल की वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। द फोर्स द बाइसेप्स मसल कैन एक्सर्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ। इट इज़ स्मॉलर व्हेन इट इज़ शॉर्टर देन व्हेन इट इज स्ट्रेच। जैसे ही हम उसको स्ट्रेच करेंगे, टेंशन की तरह कंप्रेशन करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हम लोग जो आज की लैब में सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली आप लोग का पास्को कैपस्टोन, द मोस्ट एडवांस डाटा कलेक्शन सॉफ्टवेयर इन साइंस एजुकेशन। पास्को is pushing the limits of technology so you can push your students to their potential. Capstone is designed to handle the large data set, high speed sampling and customized preference to fit the need of your lab. आप लोग बेसिकली हम इस सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर्स हैं, हम लोग इसमें क्या क्या देख सकते हैं। ग्राफ की फॉर्म में अगर कोई डाटा हो, टेबल की फॉर्म में टेबुलर डिजिट्स, मीटर्स, ऑसिलोस्कोप, FFT, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, हिस्टोग्राम बेसिकली हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल डाटा हम लोगों ने उसका एनालिसिस करना। वीडियो एनालिसिस, इमेज एनालिसिस, ट्रायल्स टेबल्स एंड सर्किट इमुलेटर, आई मीन टू से कि इलेक्ट्रिकल सर्किट की यहाँ पे बात की जा रही है, हम लोग इसको उसमें भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं इस तरह का। डाटा फंक्शन के फीचर कौन कौन से हैं, डाटा स्मूथिंग के लिए यूज़ करते हैं, मॉडलिंग के लिए एंड दी रिकॉर्डिंग कंडीशन के लिए। अच्छा, अब क्या है, जैसे हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे आप लोग को एक विंडो शो होगी। ये बेसिकली आप लोग की सॉफ्टवेयर की विंडो है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ग्राफ के लिए, FFT के लिए, हिस्टोग्राम के लिए यूज़ हो रहा है, और ये आप लोग का हार्डवेयर का सेटअप है, ठीक है। हम लोग इस सॉफ्टवेयर में बेसिकली करते क्या है, हम लोग अपने सेंसर को ऑन करते हैं। जैसे मैंने आज की लैब में वीडियो में आप लोग आगे देखेंगे, मैं उसको ब्लूटूथ के ज़रिए से आप लोग इसको ऑन करेंगे तो ब्लूटूथ से वो डिवाइस को डिटेक्ट करेगा। जैसे वो डिवाइस को डिटेक्ट करेगा वो डिवाइस कनेक्टेड हो जाएगी। कनेक्टेड होगी तो हम ये आगे वर्क करेंगे। यहाँ पे ये बटन किया हुआ रिकॉर्ड प्रेस करेंगे तो देन ये आउटपुट देता है, अदरवाइज ये यहाँ पे नहीं था। अब यहाँ पे इसका टूल बार है कि किस्म मीन्स कौन कौन से आइकन्स वगैरह यूज़ करें। आगे उसके एक्सप्रेशन है, जैसे कि फाइल है उसमें इंपोर्ट डाटा किस तरह से करना है, एक्सपोर्ट। उसके बाद एडिट में जाके अंडू का ऑप्शन है, रीडू का, कट का, कॉपी का, एंड का। एंड इन नेक्स्ट स्लाइड यू सी डैट हम लोग ऐड पेज करते हैं, डिलीट पेज करते हैं, रीनेम, लो कॉल, डिस्प्ले का पेज। ये बेसिकली आप लोग की हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की वीडियो है।